said. So today we'll solve that two questions, and then from the next lecture onwards, we'll see the next part of the syllabus. Okay. So in the next class, we'll be going for short circuit test or open circuit test. Or today only I will be telling about short circuit. Already I have explained you. Just I'll go for drawing the figure and explaining. That's all. It is all about the same to same as in the case of transformer. Already I told you that what is short circuit test and what is open circuit test, or what is load test or no load test. Okay, it is nearly same. There is some small difference because the induction motor needs three-phase supply, whereas you have studied about the single phase as well as three-phase there. So that will be the difference. In case of induction motor, it will be a mechanical load. So being there is no mechanical load, so we are going to use there is a special pulley will be available in the lab. If you will see, there is a belt drive. Through the belt drive, we will put load on the pulley, so that pulley is directly coupled with the shaft, so that the loading will be directly given to the shaft, and in that way we will be going for understanding the short circuit test or load test. Okay, that is not so difficult to understand. Okay, and we'll be going for the practical also, right? So anyway, as I told, after 20th or from 20 onwards, your practicals will be started. So every week we'll be going for 2 complete days, so that for within 2 weeks after your mid-semester test, we are going to complete the practical syllabus. Okay, at least we need to complete 7 to 8 practicals. So first week, within that 2 days, we will be completing 4, and then next week also we'll try to complete 4 practicals. Okay, mostly Mantri Madam will take, or somebody else will be engaging. Otherwise, I will come there if any problem will be there. Right? Okay. So as the numerical I had shared with you, we'll solve today, and after solving, once again I will be drawing the short circuit and open circuit. I'll try to complete today itself, so that in the next class we'll be going for circle diagram. For circle diagram, you need to call geometrical instruments, like your protractor will be needed. You have to measure angle there. You have to come with your rounder also. You're telling it as compass, okay, and then your scale and all, okay, and keep some white page as well as graph paper with you in the next class, right? So it is very important so that you can understand. See, previously when the numericals asked in the for particularly circle diagram, it was asked for 14 marks. Circle diagram का जो numerical है वो 14 मार्क के लिए आता था. But nowadays for 7 mark, 8 mark or 10 marks also it is asked, because अगर circle diagram को पूरा तुम draw करने को जाएंगे, सब कुछ अगर calculation करेंगे, then it will take at least 30 minutes. 30 मिनट उसका maximum time लगेगा. 30 मिनट का मतलब है कि आपका पूरा एक क्वेश्चन, अगर आप मेन एग्जाम दे रहे हो, एंड सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम में बैठे हो, तो आपका पूरा एक क्वेश्चन फुल क्वेश्चन होता है. बट अभी क्या है, उसमें सभी क्वेश्चंस आते नहीं, कुछ कम 2-4 क्वेश्चंस कम पूछता है उसमें, सो दैट तुमको 10 मार्क्स के लिए पूछता है या फिर 9 मार्क्स के लिए पूछता है. ओके, बट यू मस्ट नो अबाउट द सर्कल डायग्राम. सर्कल डायग्राम, before understanding circle diagram, you must be knowing this blocked rotor test, open circuit or no load test, because those readings will be used in the circle diagram. Understood? So just before this, because it is a part of the circle diagram, these 2 tests are the part of circle diagram. From the readings of short circuit test and open circuit test, you will be getting some readings. Those readings will be used in the circle diagram, right? Circle diagram का क्या है, एक ग्राफ पेपर में आपको उसको ड्रॉ करना है. उसके जो गिवन डाटा थे उसमें से कुछ कैलकुलेशन है. एक बार समझ में आया तो बहुत इजी लगता है, उतना ऐसा डिफिकल्ट बट बहुत इजी.
पहले लोग वो 14 मार्क, पूरा 14 मार्क लेते थे, वो क्वेश्चन कंपल्सरी आता था, पहले की बात है, पहले मतलब 4-5 years बैक। बट अभी ये बाटू में कैसा है, तुम्हारा जो सिलेबस उन्होंने बनाया है उसको कुछ ऐसे कोई मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उतना कुछ स्ट्रेस दिया गया है ये सब चीजों में, बहुत ही लाइटली चल रहा है चीजें, जो कि एज माई एक्सपीरियंस, जो भी कुछ मैं अभी तक जितना कुछ सीखा है या जितना कुछ देखा है उस हिसाब से आप लोगों को पेपर बहुत इजी आता है, डिफिकल्टीज नहीं है। हमारे टाइम पे मैं बोल रहा हूँ ऐसा कि 70% अगर मार्क्स रखा तो रैंक आता था, 70, 68, 69% आ गया तो रैंक आता था। आज 90% एमसीक्यू को छोड़ दो, जस्ट बिफोर एमसीक्यू, ओके, आप एमसीक्यू को बाजू में रखो, रूटीन एग्जाम में भी आप लोग आराम से 85-90% ऐसे रख लेते हैं सभी लोग। तो जो क्वेश्चंस के रेंज है वो कम हो गया है, क्वेश्चंस के डिफिकल्ट लेवल जो है वो कम हो गया है, उसके वजह से थोड़े से मुझे लगता है कि जो प्रिपरेशन है वो भी कम होता है लोगों का। बट फिर भी अगर आपको खुद के लिए प्रिपेयर करना है तो यू हैव टू बी सीरियस अबाउट इट, राइट? सो आई विल जस्ट रीड द क्वेश्चन, we'll see what actually the data is given there. In a three-phase induction motor, maximum torque occurs at a slip of 10%. क्या दिया है ये रूटीन स्लिप नहीं है, वो क्या बोल रहा है, मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स एट 10% स्लिप। इसका मतलब आपके पास दो स्लिप रहता है, एक स्लिप रहता है फुल लोड स्लिप और दूसरा जो स्लिप है वो आपके मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन के स्लिप रहता है, और जो हमेशा इससे ज्यादा रहता है क्योंकि थोड़ा आगे है स्लिप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपने देखा होगा जो मैक्सिमम पॉइंट को पहुंचता है वो थोड़ा स्लिप के वैल्यू के आगे रहता है। सो ऑटोमेटिकली अगर वो फिगर माइंड में रखेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ओके दिस इज व्हाट द स्लिप। The equivalent secondary resistance of the motor is 0.09. Equivalent secondary resistance of the motor 0.09 per phase. मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी ओमिक वैल्यू पर फेज दिया जाता है, कभी लाइन का नहीं रहता है, ठीक है? If the gross power output is 8.5 kilowatt, if the gross power output is 8.5 kilowatt, क्या मतलब है? ग्रॉस पावर आउटपुट किधर का है? पावर किस ब्लॉक का है? ग्रॉस पावर आउटपुट कौन सा रहता है? नहीं, थर्ड ब्लॉक का पावर है। ग्रॉस पावर मतलब आपने देखा होगा ग्रॉस टॉर्क में लिखा था उसमें वो ब्लॉक के नीचे, ठीक है? तो पीएम इनपुट टू द रोटर रहता है और शाफ्ट आउटपुट जो है वो लास्ट को रहता है। अगर मैकेनिकल लॉसेस को नेगलेक्ट किया जाए तो फिर ये ग्रॉस आउटपुट विल बी इक्वल टू शाफ्ट आउटपुट। शाफ्ट आउटपुट इज द फोर्थ ब्लॉक, ओके? ये हमेशा इसको थोड़ा एनालाइज करना तो तुम्हें मीनिंग समझ में आएगा, ठीक है? देन कैलकुलेट फर्स्ट बिट इक्विवेलेंट लोड रेजिस्टेंस, नंबर 2 इक्विवेलेंट लोड वोल्टेज एंड करंट एट द स्लिप, ओके? करंट एट दिस स्लिप, वो स्लिप में कितना करंट फ्लो हो रहा है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम मालूम है, लास्ट वाला जो मैंने ड्रॉ किया था उसमें क्या क्या था उसमें R01, X01 और RL था। फाइनल रोटर सर्किट का मैं मेन नहीं बोल रहा हूं, लास्ट को जो मैंने छोटा सा खाली ऐसा बनाया था, ऐसा रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, वो याद है? तो वहां पर एक RL है, RL का वैल्यू क्या दिया है? R2 गोल इनटू 1/s-1, और अगर ये साइड में आया है तो R2, क्योंकि RL गैस है ना, वो RL गैस मतलब क्या है? अगर RL लिखते हो तो लोड रेजिस्टेंस में तो सेकेंडरी, अगर रेफर टू प्राइमरी कर देते हो इट बिकम RL डैश, ठीक है? तो ये सारे इक्वेशन ऑलरेडी तुम्हारे पास है। तो पहला काम क्या पूछा है? व्हाट इज द इक्विवेलेंट लोड रेजिस्टेंस RL? व्हाट इज द इक्विवेलेंट लोड रेजिस्टेंस? तो RL का वैल्यू क्या है? R2 का वैल्यू ऑलरेडी दिया है वहां पर, जो भी R2 डैश हमने, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू वो जो इक्वेशन है आपका, क्या इक्वेशन है? व्हाट इज द इक्वेशन? योर इक्वेशन इज RL is equal to R2 1 - s-1, ओके? ये इट डिपेंड्स, अब ये डैश हो गया तो ये भी डैश होगा, ठीक है? तो अभी इसमें
उसने क्या दे दिया, इक्विवेलेंट बोल के लिखा है, देखो क्वेश्चन में इक्विवेलेंट लिख दिया, मतलब ये वाला वैल्यू दे दिया है डायरेक्टली 0.09। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन देयर गिवन डाटा, राइट डाउन गिवन डाटा, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क एस, एसएम कर सकते हैं आप, एसएम कर सकते हैं, तो 10%, 10%, ओके 10% मतलब 0.01, 10/100 इट इज 0.1। अच्छा, यहां फुल लोड टॉर्क के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो इसका मतलब है कि इसी स्लिप में सब कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर हमको फुल लोड के बारे में कुछ आइडिया दिया होता तो दोनों को अलग अलग करके हम यूज करते थे, बट अभी फिलहाल वो मैक्सिमम टॉर्क दिया है, तो मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन में स्लिप जितना दिया है, हम ऐसा सोचेंगे कि जो मशीन है वो मैक्सिमम टॉर्क में रन कर रहा है, we will assume that the machine is working under maximum torque, क्योंकि आपके पास दूसरा स्लिप नहीं है, तो हमारा कंडीशन ही ऐसा है कि मैक्सिमम टॉर्क में वर्क कर रहा है मशीन, तो उस हिसाब से हमको रूटीन स्लिप के हिसाब से उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि सारे कैलकुलेशन उधर वैसा ही है। तो राइट आंसर द इक्विवेलेंट सेकेंडरी रेजिस्टेंस ऑफ द मोटर, इक्विवेलेंट सेकेंडरी रेजिस्टेंस ऑफ द मोटर, इक्विवेलेंट secondary resistance of the motor is equal to 0.09, 0.09। it depends आप उसको क्या लिखते हो, अगर R2 डैश लिखते हो तो उसका वैल्यू R2 डैश रखो वहां पर, ठीक है। तो R2 is equal to 0.09, okay। now gross power output, gross power output, gross power output, क्योंकि ये भी दिया है ग्रॉस पावर आउटपुट इज इक्वल टू, क्या सिंबल यूज किया है थर्ड ब्लॉक में, पीएम, राइट आंसर पीएम, पीएम इज इक्वल टू 8.5 kW इक्वल टू 8500 वाट्स, 8500 वाट्स। लिख लिया, वहां पर एक छोटा फिगर भी ड्रॉ करो, कौन सा फिगर, ये वाला फिगर, ये आपके जो लास्ट का जो फिगर, ताकि फिगर को देख के आपको बहुत सारे कैलकुलेशन इजी हो जाता है। ये फिगर ड्रॉ कर लेना, ये वाला वैल्यू 0.09 दिया है, ठीक है। भले आप इसको अभी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम इसका नाम क्या दिया, R2 दिया है, ओनली R2 दिया है, तो फिर आप R2 लिख लो जो मैंने बताया था आपको। फिर आप जब उस साइड को लेंगे या नहीं लेंगे वो बात की बात है, क्योंकि यहां पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये X2 ये आपके R, ठीक है, और आपके स्लिप आपने S इज इक्वल टू 0.1 ले लिया, आपके PM जो है वो 8.5 kW। कुछ बोलना चाहते हो, कोई तो कुछ बात कर रहा है, 0.0 स्लिप कितना है, कैसे 10% है, 10 मतलब 0.1 हो जाता, ओके। ये इसका मीनिंग है कि 10 है, समझ में। अगर 1% होता है इट बिकम 0.1, ठीक है। इसलिए होता है कंफ्यूजन, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहीं भी कंफ्यूजन हो गया, हमेशा याद रखो बिलो 10 हो गया ना तो 0 आ जाता है, और बाकी अपने पास है ना बेसिक डिवाइडेड बाय 100, तो 10% डिवाइडेड बाय 100 का मतलब है कि 1/10, 1/10 का मतलब 0.1 होता है कंफ्यूजन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इट बिकम 0.1, ओके, सॉरी इतने वर्ड्स। बाकी R2 0.09, राइट, ओके। सो नेक्स्ट वहां मैसेज ध्यान रखना, then you calculate RL is equal to, put everything in the equation, कितना आया बोलो, RL is equal to R2 तुम्हारा 0.09 होल इनटू 1/0.1 माइनस 1, S दिया है ना, सब दिया है वहां पर, डाल दो वैल्यू। डोंट वरी अबाउट मैक्सिमम स्लिप, क्योंकि अपने को गिवन स्लिप उतना ही है। हाउ मच यू आर गेटिंग, 0.81, 0.81 is the answer, that to be ohms। क्यों,
ये आरएल है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? राइट, सो लोड रेजिस्टेंस आरएल इज व्हाट? नेक्स्ट राइट अप इक्विवेलेंट लोड वोल्टेज। इक्विवेलेंट लोड वोल्टेज का क्या मतलब है? मैं फिगर इसलिए ड्रॉ करने को बोला था कि इक्विवेलेंट लोड रेजिस्टेंस का मतलब है, यहां पर मैं आरएल लिखता हूं, दिस वोल्टेज इज नोन एज इक्विवेलेंट लोड रेजिस्टेंस, लोड वोल्टेज। ठीक है, तो मुझे बताओ कि आप अगर इसको निकालना है तो आप ये इक्वेशन पावर आउटपुट से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने रोटर आउटपुट दिया है, ये है रोटर आउटपुट। अच्छा, मैं तुमको एक नॉर्मल इक्वेशन लिख के बताता हूं कि कौन से पावर का इक्वेशन तुमको पता है। अगर सिंपल लाइक पावर इक्वेशन में लिखता हूं, P इज इक्वल टू V इंटू I होता है अगर पावर फैक्टर यूनिटी है, नहीं तो फिर पावर फैक्टर भी आता है। तो इसको हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ टू कैलकुलेट वोल्टेज फ्रॉम पावर। वो तो हम कैसे भी कैलकुलेट करेंगे, बट पहले हम ये देखेंगे इसका क्या रिलेशन है। ओके, वी आई, ठीक है, मैं V की जगह अगर मैं I है, करंट है, अभी हमेशा आपको मालूम है कि V इज इक्वल टू I इंटू R, तो I का वैल्यू V बाय R है, तो मैं यहां पर V बाय R लिख सकता हूं, मैं यहां पर V स्क्वायर बाय R भी लिख सकता हूं। मैं क्यों इसको मिनिमम चीजें चेंज कर रहा हूं? मुझे पावर मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, मुझे वोल्टेज फाइंड करना है, इसलिए मैं इक्वेशन को कन्वर्ट करके बता रहा हूं। बट अब ये जो P इक्वल टू VI है वो सिंगल फेज पावर का कैलकुलेशन है। When it is three phase, there will be a 3 here. When you are talking about three phase power, single phase power जो है वो V into I है। When you will be talking about three phase power, it become 3 multiply, क्योंकि यहाँ पर पावर फैक्टर के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो वो यूनिटी पावर फैक्टर एज्यूम हो जाता है, एज्यूम हो गया। एक्चुअली P is equal to VI cos phi, where P voltage and current are phase values. If this power factor is 1, then it becomes P is equal to VI. This VI can also be written, ये आपके I square R की पावर बोलते हैं इसको। ओके, इसको भी प्रूव किया जा सकता है, बहुत सिंपल है। लाइक इफ यू विल बी टेकिंग V is equal to I into Z, I is equal to I, cos phi is equal to R by Z. Z will get cancelled, it will be I square R. Okay, so basic theories है। तो as I have written here, P can be written as P और PM। PM दिया है ना आपके पास, PM is equal to 3V2 square RL। लोड क्या है वहां पर? RL। वोल्टेज किधर निकाल रहे हैं? ये वाला वोल्टेज है, तो ये वाला वोल्टेज है, इसका मतलब है कि ये दोनों का रिलेशन, यहां हमारा पावर PM है, इस कंडीशन में यहां पर अपने पावर है जो दिया है। अब समझ में आया? अब हमारे पास P है, RL है, हमको V निकालना है। सो राइट डाउन दैट, वी नो दैट, ये रफ में कर लेना, ये बाजू में कहां तो करके रखना, कभी तुम सॉल्व करते वक्त आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप रेगुलर ये इक्वेशन यूज नहीं करते हो। राइट डाउन दैट, we know that gross power PM is equal to, gross power PM is equal to 3V square by RL। 3 हमने V2 लिखा है, क्या वहां पर V लिखा है तो V लिखो, V2 मत लिखो। यहां याद रखो, यहां हमने V लिखा है तो उधर V लिख दें। ये V1 V2 जो है वो अपने रेफरेंस के लिए है, कि हम समझ में आए हमको। तो कितना हो गया? पावर का इक्वेशन क्या बन गया? व्हाट इज PM is equal to 3V square divided by RL. Now put everything in the equation, find out the answer. Tell me the answer. ये क्या करो, सिंगल फेज पावर बोल के लिखो ऐसा, और क्या करो ऐसा लिखो, P सिंगल फेज। तो ये वाला इक्वेशन आ गया। फिर यहां पर क्या करो, P थ्री फेज into 3, मतलब इक्वल टू 3 into P सिंगल फेज। ये जस्ट तुम्हारे रेफरेंस के लिए, प्रोवाइडेड यूनिटी पावर फैक्टर PF1। ओके,
तो अब हम सब लोग फॉर्मूला में डालेंगे, विल बी, तो अपने पास क्या क्या है, Pm is equal to 3V square by RL, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, V square is equal to Pm into RL by 3, and if it will be V, it will be root over of Pm RL by 3. Okay, so Pm कितना 8500 मल्टीप्लाइड बाय RL कितना आया 0.81 divided by 3 and root कितना आया, good. So you got voltage as 40.96 or nearly 48 volts. राउंड नहीं करना है, मैंने लिख दिया है ऐसे ही, but you keep as it is, don't go for round values. So it becomes 47.96 volts. ये आपकी सेकंड आंसर। क्या पूछा था सेकंड क्वेश्चन? यस, इक्विवेलेंट लोड वोल्टेज। तो लोड वोल्टेज, अच्छा अभी तुम क्वेश्चन पूछेंगे सर हमने डैश वगैरह क्यों यूज नहीं किया, हमको काम ही नहीं था, हमको ये भी नहीं देखना था कि वो रेफर टू प्राइमरी हुआ या रेफर टू सेकेंडरी हुआ, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यूज दिया है। तो हमें आंसर से ही जहां हमको कन्वर्ट करना पड़ता है वहां फिर के का बात आता है, के स्क्वायर की बात आता है, फिर के स्क्वायर को डिवाइड करना क्या मल्टीप्लाई करना वोल्टेज के साथ, वो भी देखना है फॉर्मूला। यहाँ सीधे सीधे दिए हैं, तो इसलिए हम ज्यादा कुछ सोचेंगे नहीं कि कौन सा रेफर करना है, हमें वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टेंस, बट प्रोवाइडेड ये फिगर हमको समझ में आना चाहिए। तो ये फिगर अगर है तो हम समझ, अभी व्हेन यू आर फाइंडिंग आउट वोल्टेज, आप वोल्टेज फाइंड कर रहे हो, तो वोल्टेज फाइंड कर रहे हो मतलब यहाँ पर RL है, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में फाइंड कर रहे हो, वो हिसाब से आपको फाइंड करना है। तो आपके फाइनल आंसर क्या हो गया, ये लिख लीजिए, ओके, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ओके, ये क्वेश्चन का इस क्वेश्चन में उसका कोई काम नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए। यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी है। अभी आप जब कॉम्पिटिटिव अपने इलेक्ट्रिकल के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेते हैं किसी कंपनी को ये होने के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो वहां पर इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के फॉर्मूला की यूज होता है वहां पर, ठीक है। अब कितना हो गया 47.96। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज बिट 2, बिट 3 क्या पूछा है, तो उसी में करंट पूछा है, वोल्टेज है, RL है आपके पास, बहुत इजी है। सो इफ यू विल बी फाइंडिंग आउट IL इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय RL, V भी है, RL भी है आपके पास, यू कैन इजीली फाइंड आउट वोल्टेज बाय, इसी में करंट है, ये वाला करंट फाइंड करना है, ये वाला करंट फाइंड करने को ये दोनों रिस्पांसिबल, कितना 59.13 एम्पीयर। अभी तुम पूछेंगे सर इन दोनों का इफेक्ट नहीं है क्या वोल्टेज में, तो करंट में नहीं है क्या? एक्चुअली क्या है, ये वोल्टेज जो है ना इसी दो पॉइंट के अक्रॉस में है। एक्चुअली इनपुट वोल्टेज जो है, इधर इनपुट वोल्टेज है, दिस इनपुट वोल्टेज इंक्लूड्स ऑल, बट यहां पर ये आउटपुट वोल्टेज है, तो ओनली RL के अक्रॉस में, और इसमें जो ड्रॉप हो जाएगा ना ये आपके लॉसेस है। आपने इनपुट दिया, यहां कुछ लॉस हो गए, और यहां कितना एम्पीयर होता है, ओके। सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, ओके। सो ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हैव यू सॉल्व्ड द न्यूमेरिकल? There are 3 questions. The first question you got answer as first bit 0.81, second as 47.96, the third is 59.13 ampere. Okay, no answer? No answer from online students? Yes or no? R minus JXC फॉर्मेट है, तो जब
ये आता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस आता है, और ये जब आता है तो ये दिस इज आरसी सर्किट, दिस इज आरएल सर्किट। तो ये भी एक इंपीडेंस है और ये भी एक टाइप का इंपीडेंस है। दीज आर द टाइप ऑफ इंपीडेंस। तो जब वो स्टेटर का मोटर है तो स्टेटर का इंडक्टेंस नहीं है, वो स्टेटर का इंपीडेंस है। आया ध्यान में आपको? वो क्वेश्चन में लिखा है इसलिए मैंने दे दिया वैसे ही, बट एक्चुअली इट इज स्टेटर इंपीडेंस। आपको आया ध्यान में? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंपीडेंस तो आर और एल दोनों रहना। जब आप ओनली इंडक्टेंस के बारे में बोलोगे तो प्लस जे है, सिर्फ अगर इतना ही वैल्यू होता। ठीक है, तो so you write down there the stator impedance, अगर इंडक्टेंस लिखा है तो ब्रैकेट में इंपीडेंस कर लो उसको। so it is 1.2 plus j 3.0, stator impedance 1.2 plus j 3.0। हमेशा याद रखो इस टाइप के न्यूमेरिकल आया तो आप क्या करना है, अभी अगर आपको कैलकुलेटर में डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस पता है, अगर आपको पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमेशा ये देखो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुड बी इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। जो प्योर वैल्यूज है वो ऐड हो सकते हैं, जो इम्प्योर वैल्यूज है वो ऐड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल a प्लस जे बी और c प्लस जे डी, ओके, अगर ये दोनों को ऐड करने हैं तो कीप इट विद द रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये बोलता है रेक्टेंगुलर फॉर्म। अगर ये दोनों को ऐड करने हैं देन इट इज a प्लस c प्लस j विद b प्लस d। दिस इज एडिशन। इफ देयर विल बी a subtraction then here you will be getting subtraction, not this, sorry, here will be the subtraction, क्योंकि the resistive values will be subtracted, the reactive values will be subtracted when it is a subtraction. So addition and subtraction in the rectangular form will be easy, and in the polar form you can go for multiplication and division. Okay, ये basics है, but कुछ कैलकुलेटर में हम डायरेक्टली पोलर फॉर्म को डाल के भी मल्टीप्लाई एडिशन सब कर सकते हैं, या रेक्टेंगुलर कोड यूज करके कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपके पास कौन सी कैलकुलेटर है और आपको उसको डिटेल्स पता नहीं है, बट फाइनली योर आंसर शुड बी करेक्ट। ठीक है, तो आप देख लो कि आपको ये यूज करना है या कौन सा यूज करना है, बट फॉर द टाइम बीइंग लेट अस राइट डाउन द पोलर फॉर्म आल्सो, कन्वर्ट इट एंड टेल मी 1.2 plus j 3.0। similarly I will be writing the other values. Rotor stand still impedance is equal to 1.2 plus j2। Similarly no load shunt impedance क्या दिया है? No load shunt impedance, no load shunt impedance is equal to 12 plus j 55। ओके, और क्या दिया है? वोल्टेज दिया है 240, तो इसको आप एंगल 0 दिखा सकते हैं। You can go for showing it as 0, or you can write down like 240 plus j0। You can write down like this also, either in polar form or in rectangular form। ठीक है, so these are the values which is given। Okay, now आपको क्या कैलकुलेट करना है? First of all you have to see that the question, first question is stator current। To calculate stator current you need to calculate stator current पूछा है, मतलब क्या है? आपको I1 फाइंड करना है। ओके, I1 फाइंड करने के लिए स्टेटर में करंट है, स्टेटर करंट फाइंड करने के लिए आपको दोनों चाहिए, आपके I0 चाहिए प्लस वेक्टर एडिशन ऑफ I0 एंड I2 डैश।
आपको सेकेंडरी रेफर्ड टू प्राइमरी वो वाला करंट भी लेना है और जो नो लोड करंट वहां पर फ्लो हो रहा है वो भी लेना है। ये दोनों के वेक्टर डायग्राम है आपके नेट करंट। आप जब लोड नहीं लगाते हो तब आई नॉट फ्लो होता है, जब आप लोड लगाते हो तो एक नया करंट फ्लो होता है। वो नया करंट क्या है? इट इज I2 डैश। सो ये दोनों की करंट आपको पहले कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों कैलकुलेट करने के लिए आपको इंपीडेंस वगैरह का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो राइट डाउन देयर इक्विवेलेंट लोड रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट लोड रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट लोड रेजिस्टेंस RL रेफर टू प्राइमरी सब हो रहा है तो हम अभी डैश लिखेंगे RL डैश। सो RL डैश इज इक्वल टू R2 डैश होल इनटू 1 by s minus 1। Now what is sleep given? Sleep is given 5%। कितना दिया है sleep? 5% दिया है तो इट इज 0.05। ठीक है। सो R2 डैश, नाउ व्हाट डू मीन बाय R2 डैश? R2 डैश क्या है? उधर की इधर लाना है, k स्क्वायर डिवाइड करना है। सो राइट डाउन देयर it is equal to R2 divided by k square, which is equal to R2 by k square whole into 1 by s minus 1। okay, now क्या वैल्यूज है? what is R2 there? R2 is equal to, अभी रोटर स्टैंड स्टिल में है, रेजिस्टेंस कितना है? 1.2 दिया है। अब ये देखो ये वाला, ये नहीं ये वाला वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये कौन सा फॉर्मेट में है? R plus JXL फॉर्मेट में है तो उसका रोटर वैल्यू कितना है? 1.2। रोटर और रिएक्टेंस दिया है ना वो, तो 1.2 ले लो। 1.2 डिवाइडेड बाय k स्क्वायर, डिवाइडेड बाय k स्क्वायर। वहां पर ऐसा करो, assuming being nothing is mentioned about ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, उधर लिख लो assuming k is equal to 1, assuming k is equal to 1। ओके, k क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। व्हाट इज k? k इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो कितना आ गया? 22.8 correct है। Answer is given here. So your RL is 22.8 RL dash. Okay. Then you write down the effective impedance per phase. The effective impedance per phase of the primary. Write down effective impedance per phase of the primary. Effective impedance per phase of the primary. वो तुमको पहले समझाने से पहले आई वांट टू ड्रॉ द फिगर सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि क्या क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? इफेक्टिव इंपीडेंस ऑफ द प्राइमरी साइड, मतलब जितने सारे तुम सेकेंडरी से प्राइमरी को रेफर किया था वो सभी मिलके कितने इंपीडेंस है प्राइमरी साइड में? पूरा जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में RL है, R1 है, R2 डैश है, X1 है, X2 डैश है। ये सभी के एडिशन, ये सभी के एडिशन आपके टोटल इंपीडेंस होता है। तो मैं लिखता हूं, यहां पर लिखने के बाद आपको समझ में आएगा इफेक्टिव इंपीडेंस ऑफ द सर्किट रेफर टू प्राइमरी। ओके, इक्वल टू कितने रेजिस्टेंस है वहां पर फिगर में? 3 रेजिस्टेंस है। कौन से? R1, R2 डैश, RL। कितने रिएक्टेंस है? 2, X1, X2 डैश। तो हम उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में लिख देंगे उसको। राइट डाउन R1 प्लस R2 डैश प्लस RL डैश को ब्रैकेट में रखो। इट इज इक्वल टू R1 R2 डैश प्लस RL डैश, इसको ब्रैकेट में, प्लस X1 प्लस X2 डैश इंटू J। अब हम वो सारे वैल्यू जो ऊपर है सब लिख देंगे यहां पर।
क्या लिखेंगे? इट इज इक्वल टू 1.2 प्लस 1.2 प्लस 22.8। हमने अभी कैलकुलेट किया है, ठीक है। 1.2 कहां से आया? ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और ये लोड रेजिस्टेंस, तीनों को ऐड किया, प्लस प्लस ये दोनों वैल्यू कितना हो गया? J3 plus 2. So finally the equation will be 25.2 plus J5. सबको आगे नहीं, इफेक्टिव इंपीडेंस ऑफ द नेटवर्क। मतलब आपने क्यों ये निकाला? क्योंकि आपको करंट निकालना है। करंट के लिए आपको नेट इंपीडेंस चाहिए सर्किट के। नेट इंपीडेंस नहीं है तो आप करंट नहीं निकाल सकते। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय नेट इंपीडेंस ऑफ द नेटवर्क, and because of that we are finding out the net impedance. Is that clear? So you finally got a complex calculation for impedance, net impedance. Now you write down स्टेटर करंट को ऐसा बिट 1 दे दो, स्टेटर करंट I1 लिखो, अंडरलाइन करो। उसके लिए दो कैलकुलेशन करने हैं। और अभी मैंने आपको क्या बताया था? दो करंट कैलकुलेशन कर, एक I0 और एक I2 डैश। सो राइट डाउन देयर स्टेटर लोड करंट I2 डैश। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट I2 डैश। इसको क्या बोलते हैं? एक तो इसको बोलते हैं लोड करंट और इसको बोलते हैं सेकेंडरी करंट रेफर टू प्राइमरी, और यू कैन से इट इज लोड करंट इन द प्राइमरी साइड। लोड करंट है ना ये, तुम जब लोड लगाते हो तभी जाके ये फ्लो होता है। लोड नहीं है तो ओनली I0 रहता है। रिमेंबर, और एक बार मैं क्लियर कर रहा हूं, ये दोनों कॉमन है ट्रांसफार्मर के लिए और इंडक्शन मोटर के लिए। इंडक्शन मोटर में भी यही होता है। अगर आपने लोड लगाया तो ये लोड लगाने के वजह से सेकेंडरी में एक करंट फ्लो होता है, उस करंट का इक्विवेलेंट प्राइमरी में भी फ्लो होता है। अगर वो नहीं है तो सिर्फ नो लोड करंट प्राइमरी में रहता है। तो इसका मतलब है कि दो करंट है वहां। कौन से दो करंट है? एक है I0 और एक है लोड कंपोनेंट। लोड लगाने के बाद जो करंट फ्लो होता है, तो ये दोनों का एडिशन, वेक्टर एडिशन विल बी द फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? So now we will be calculating those currents. So write down I2 dash is equal to, आपके वोल्टेज कितने हैं अभी? वोल्टेज कितने? 240 डिवाइडेड बाय, अभी आपने नेट इंपीडेंस नीचे कैलकुलेट किया है, तो I2 dash is equal to 240 divided by 25.2 plus J5 वोल्टेज बाय इंपीडेंस। वोल्ट आप ऐसा लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाय Z इफेक्टिव। फाइनल आंसर बताओ, वो भी कॉम्प्लेक्स में आएगा। कितना आ गया? 1 मिनट में आंसर यहाँ पर डायरेक्टली है, मैं आपको लिख के देता हूं, बाकी आप चेक करो कि आपको इतना आया कि नहीं। इतना आ गया सबको? चेक करो कहां तो रॉन्ग है, क्योंकि कुछ सब राइट लिखा हुआ है। थोड़े से चेक करो और इसके पोलर फॉर्म में लिख के रखो। टेल मी द पोलर फॉर्म एंगल के साथ। नहीं, चेक करो कहां तो कैलकुलेशन रॉन्ग हो रहा है। बाद में तुम लोग बैठ के ये करो। किसी को आया? ओके, थोड़ा बहुत चेंज होता है, कहीं 17, 18, 14 या यहां पर 82 की जगह पे 84, 82, 81 ऐसा पॉइंट्स में चेंज होता है, बट यू विल बी गेटिंग नियरली दिस वैल्यू। वर्ड साइड से किसी को आया? सेम आंसर? ओके फाइन। सो इसको थोड़ा पोलर फॉर्म में चेंज करो। एक मिनट बता। 9.33 वेरी गुड। 11.2 मैं पावर फैक्टर के लिए यूज करूंगा, इसलिए मैं लिख के रख रहा हूं। I'll be using it for power factor. Otherwise ये काफी है। ओके, अब आपके एक करंट आ गया। दूसरा करंट क्या है? What is the second current? I0. Write down the stator no load current I0 is equal to stator no load current I0 is equal to
कौन बताएगा? Who will tell? हाँ यस, आई नॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने पहले भी बताया, लेकिन यहाँ मैंने जो पहले बताया उसका यूज नहीं है। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, नो लोड इम्पीडेंस डायरेक्टली दे दिया। अब वो आर नॉट एक्स नॉट नहीं, उसका इम्पीडेंस ही दिया, तो डायरेक्टली वी बाय दिस, क्योंकि उसका इम्पीडेंस सेपरेटली दिया है, तो हमको इसके बारे में वरीड होने की जरूरत नहीं है। अभी तक हमने इसको यूज नहीं किया है। ये कौन सा वाला दिया है? ये जो पैरेलल है ना, इसका इम्पीडेंस दे दिया है। तो वोल्टेज तो है यहां पर 240, डिवाइड कर दो इसके साथ, डायरेक्टली आंसर। तो कितना आ गया? 240 डिवाइडेड बाय 12 प्लस j55, कितना है आंसर? मैं यहां पर ये कैलकुलेशन के बाद आई विल स्टॉप हियर। बाकी पार्ट्स में आपको शेयर करता हूं सॉल्व करके, क्योंकि टाइम हो गया है अभी। रिमेनिंग पार्ट आई विल बी शेयरिंग विद यू। कितना आ गया? किसमें, पोलर में बोल रहे हो कि रेक्टेंगुलर? रेक्टेंगुलर। कितना आंसर? 0.90। मैं एक बार चेक करता हूं कितना आंसर है। राइट है, राइट है ना? 91 आया है यहाँ पर, 0.91 आया है, तो इसे 909 वगैरह आया होगा। 908 मतलब वो 91 हो गया, 8 को 10 किया उसने। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ना हमको क्या निकालना है आंसर? I1 निकालना है। I1 is the vector sum of I0 plus I2 डैश। ये दोनों का वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन मतलब कॉम्प्लेक्स एडिशन। कॉम्प्लेक्स में दोनों का आंसर है ना आपके पास, तो दोनों कॉम्प्लेक्स में एडिशन कर दो। क्या फाइनल आ गया? ये है ना, ये दोनों का एडिशन करना। 9.16 में 0.9 ऐड करा तो 10 समथिंग हो जाएगा। 10.23 प्लस नहीं, माइनस आएगा सर। कहां है? ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों एडिशन हो जाएंगे। 5.98 जे। आर यू गेटिंग दिस? सबको आ गया? तो ये हो गया आपके, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। सो द नेट करंट इज 10.07। 10.23 कैसा है? 10 पॉइंट कितना है? 06। 23 कैसा? 06 राइट है, और 5.98 करेक्ट। ओके, अलग क्या हो गया? क्या हो गया? करेक्ट है, माइनस होना चाहिए, माइनस। मैं एक आंसर माइनस है, मैं प्लस कैसे बोल सकता हूं? मैंने लिखा तो रॉन्ग लिखा होगा, तो आप बोलना है। ठीक है, सीधी सीधी बात है, इसमें क्या है? तो मेक इट माइनस। हो गया, ये तुम्हारा आंसर। अब आपको इसको पोलर फॉर्म में लिखना है वहां पर, राइट डाउन इन पोलर फॉर्म, सो दैट, क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड लेना है ना, पोलर फॉर्म का जो एंगल के पहले जो वैल्यू है ना, उसको आंसर बोलना है। आप कोई भी करंट के मैग्नीट्यूड पूछा तो आप उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में नहीं रख सकते, यू हैव टू कन्वर्ट इट टू पोलर फॉर्म, और उसका मैग्नीट्यूड इज द आंसर। कितना आ गया? 11.71 विथ एन एंगल, वो लिख लो, और फिर इक्वल टू 11 पॉइंट, ये लिखने का एम्पियर, एंगल को छोड़ के। पहले विथ एंगल लिखना। प्रोसीजर क्या है? रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में है, convert it to polar form. After converting the polar form, write down the magnitude only, equal to only magnitude, ampere लिखना है, आंसर। आया ध्यान में? Okay. Now what is the next question?
नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट रोटर करंट पूछा है। इक्विवेलेंट रोटर करंट तो आपने निकाल लिया, इक्विवेलेंट रोटर करंट का मतलब I2 डैश। सेकंड बिट राइट डाउन, ये सब हो गया अपना, खाली अभी मेन काम हो गया, अभी लिख लो खाली फटाफट करना। सेकंड बिट, इक्विवेलेंट रोटर करंट, इक्विवेलेंट रोटर करंट, इक्विवेलेंट रोटर करंट इज I2 डैश। I2 डैश बोले तो क्या है, I2 डैश हमने ऑलरेडी निकाला है, ये आंसर है 9.33 इज द आंसर। ओके, इक्विवेलेंट, इसलिए मैंने बोला कि आपको पोलर फॉर्म में रखो ताकि आपको जहां भी क्वेश्चन पूछे। अब I2 डैश हमने पहले ही कैलकुलेट किया है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 9.33 एम्पियर इज द आंसर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या करो, इनपुट पावर फैक्टर पूछा है। इनपुट पावर फैक्टर, इनपुट पावर फैक्टर का क्या मतलब है, कौन सा एंगल, इनपुट पावर फैक्टर कौन सा एंगल है, इनपुट पावर फैक्टर किस में से कैलकुलेट करेंगे, I1 से। I1 का एंगल कितने हैं, तो लैगिंग आएगा, माइनस मतलब लैगिंग, उसका कॉस फाई करना। ये जो एंगल है ना I1 का हम कैलकुलेट किया, इसका मैग्नीट्यूड निकाला था ना 11 पॉइंट समथिंग विथ एंगल कितना, -30 हाँ, तो 30 का कॉस लेना, पोलर फॉर्मेट के जो एंगल रहता है उसका कोसाइन वैल्यू ले लिया, हेलो नमस्ते सर, मैं लेक्चर में हूं, एक 5 मिनट में कॉल कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट है इनपुट पावर हो गया, इनपुट पावर, मैकेनिकल पावर डेवलप, मैकेनिकल पावर डेवलप, मैकेनिकल पावर डेवलप मतलब 3 फेज पावर लिखना है, राइट आउट 3 इनटू, खाली फार्मूला लिख के लो, कैलकुलेशन बाद में करो, 3 इनटू I2 स्क्वायर, सॉरी I2 डैश स्क्वायर इनटू RL डैश। मैकेनिकल पावर डेवलप मतलब लोड में पावर डेवलप होता है, तो राइट डाउन 3 इनटू I2 डैश के स्क्वायर, I2 डैश के मैग्नीट्यूड लेना जब कैलकुलेशन को डालोगे, इनटू RL डैश, तो कितना कितना वैल्यू है, I2 डैश 9.33 आया है ना, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड जब ओके जितना भी आया मल्टीप्लाइड बाय RL 22.8 मल्टीप्लाइड बाय 22.8 RL डैश, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 इनटू 9.33 स्क्वायर प्लस 22.8 कितना आया आंसर, 648.1, नहीं कुछ तो गड़बड़ कर रहे, 5967, 3 into 9.34 के स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 22.8, बाकी लास्ट है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट, आपके अभी आउटपुट निकल गया है 5967, ओके, और इनपुट आपको कैलकुलेट करना है एक्चुअल इनपुट, ये मैकेनिकल पावर डेवलप इज इक्वल टू 3 into I2 डैश स्क्वायर into RL डैश, इसमें आपको आ गया 3 into 9.34 के स्क्वायर into 22.8, तो इसका आंसर आया 5967,
अभी आपके एफिशिएंसी इज इक्वल टू ये तुम्हारा फिफ्थ बिट आउटपुट बाय इनपुट। ओके, ये 5 9 6 7 ये 3 फेज पावर। यहां पर इनपुट आपको निकालना है, इनपुट के लिए आपको पूरा पावर लेना है, तो 3 टाइम्स वोल्टेज 240। VI cos phi रहता है ना, VI cos phi लेना है क्योंकि cos phi भी है यहां पर, इनपुट cos phi है ना, तो 240 इंटू करंट कितना 11.71, आपका I1 कितना है इंटू 0.86 इंटू 100। ये क्या है आपके इनपुट इज इक्वल टू 3 इंटू V फेज इंटू I फेज इंटू cos phi। तो ये क्या है, फेज का मतलब है ये 1, ये क्या है ये 1 है, तो I1 आपने कैलकुलेट किया, पावर फैक्टर आपको पता है, V1 आपको मालूम है 240, 3 टाइम्स। यहां पर √3 कब होता है, जब ये लाइन वैल्यूज रहता है, तो लाइन वैल्यूज नहीं फेज वैल्यूज है, तो 3 इंटू V1 I1, मैंने अभी ये 3 इंटू V1 इंटू I1 इंटू पावर फैक्टर, इट इज इक्वल टू 82.29%। ओके, मैं इसके ये एक्चुअली इसमें एक सॉल्व न्यूमेरिकल है, मैं उसका भी फोटो डाल देता हूं ग्रुप में, ठीक है। सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू कैन लीव नाउ।